हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़ रहे 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like, share and subscribe to my channel and even on your notification bell icon so that latest video आपको पहले मिले। And yes students, आज हम लेके आए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12। अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। एंड यस स्टूडेंट्स, इवन यू डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड माय फेसबुक पेज। So let's begin with important question bank of subject organization of commerce and management of class 12. First, we'll start discussing distinguish between. Now there are total 13 important distinguish जो आपको एग्जाम में लर्न करना है। First will planning and organizing. Second, staffing and directing. Third, coordinating and controlling. First three distinguish are from chapter number 2, functions of management. Fourth, current account and saving account, fixed deposit account and recurring account, commercial bank and central bank. 4, 5, 6 are distinguished from chapter number 4, business service. Seventh, e-business and traditional business, which is from chapter number 5, e-business, that is emerging modes of business. 8th, district commission and state commission. 9th, state commission and national commission. These are the distinguished which are from chapter number 7, consumer protection. 10th, life insurance and fire insurance. 11th, marine insurance and life insurance. Again, these are the distinguished are from chapter number 4, business service. 12, BPO and KPO, which is from chapter number 5, emerging modes of business. 13, entrepreneur and manager, which is from chapter number 3, that is entrepreneurship development. तो यस स्टूडेंट्स, आप इस तरह से देख सकते हो टोटल 13 डिस्टिंग्विश है जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। आपने अगर इतना कर लिया तो डेफिनेटली यू विल एबल टू अटेम्प्ट ऑल डिस्टिंग्विश ऑफ क्लास 12। आई होप यू गॉट इट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में। नाउ let's start discussing the short notes of all chapters which are most important. First, nature of principle of management, which is from chapter number 1. Second, 14 principle of management. Yes students, अभी 14 principle of management which is given by Henry Fayol. अभी ये जो शॉर्ट नोट है आपको रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनी 5 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस तरह से भी आपको आ सकता है। तो आप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या एनी 5 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दोनों में से कोई भी आया तो आपको यही आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 लर्न करना है, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। फोर्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, importance of staffing and importance of coordinating. All these questions are from chapter number 2. Now अगर आप ये देखोगे तो हमारे 6 functions of management है एंड इसका पूरा आपको चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर नंबर 2 functions of management के पूरे functions को अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। So these are the questions from chapter number 2 which are important. Next, 10th one, that is functions of an entrepreneur. 11th, characteristics of an entrepreneur. Now these are the questions which are from chapter number 3. अभी functions भी आ सकता है आपको एग्जाम में या characteristics भी आ सकता है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म।
नाउ स्टार्टअप इंडिया एंड एग्रो टूरिज्म आपको इसी बार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है जो न्यू सिलेबस के हिसाब से. सो आइदर यू कैन मेंशन अबाउट स्टार्टअप इंडिया विच इज द फेमस एंड मोस्ट रेप्यूटेड टॉपिक जो आप लिख सकते हो एग्जाम में, एंड एग्रो टूरिज्म विच इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर. सो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके चैप्टर नंबर 3 से है. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बैंक. अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. टाइप्स ऑफ बैंक क्वेश्चन आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है. अदरवाइज इट कैन कम एज शॉर्ट नोट एज एनी 5 टाइप्स ऑफ बैंक. अगर आपको एग्जाम में आता है एनी 5 टाइप्स ऑफ बैंक तो भी आपको यही लिखना होगा. एंड अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछा गया तो आपको टोटल 9 पॉइंट्स आपको मेंशन करने होंगे. सो 100% टाइप्स ऑफ बैंक, शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लर्न करना है. और ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 4 दैट इज बिजनेस सर्विस के चैप्टर में से है. नेक्स्ट वन, दैट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. अगेन स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट नोट. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपको आया तो आपको हर एक फंक्शन मेंशन करना होगा. दैट इज योर एक्सेप्टेड डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन. दोनों फंक्शन अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा अगर वो क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आता है. सो इस तरह से अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस देखे जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन, दैट इज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. तो ना जैसे आपको पता है कि बिजनेस के हिसाब से देयर आर 2 फंक्शंस, वन इज योर प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी फंक्शन. अगेन ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है. एंड अगेन ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस है. 17th ई बैंकिंग विच इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. इट कैन कम फॉर शॉर्ट नोट. टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस and functions of warehouse and types of warehouse. All these questions are from chapter number 4 business service. Again हमने business service के हर एक क्वेश्चन अपलोड किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो एंड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस. This question is from chapter number 5 emerging modes of business. Next, online transaction and outsourcing. ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 में से. ये तीनों क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के लिए आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा. तो क्वेश्चन 22, 23 एंड 24 100% आपको शॉर्ट नोट के लिए लर्न करना है. नेक्स्ट वन 25 दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट. अभी स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है उसमें n नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन. उसमें से मैंने सिलेक्ट करके आपको 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है. दैट इज 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स एम्प्लॉयज. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स. इस तरह से आपके टोटल 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से इंपॉर्टेंट है. अगेन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है आइदर फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में से राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अगेन दोनों क्वेश्चन शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है आइदर फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स from chapter number 7 consumer protection. Next, CSR, one of the important question that is corporate social responsibility from chapter number 6 social responsibility. Definitely it can come as a short note, not for the long question. And the last chapter that is marketing, जहाँ पे importance of marketing, functions of marketing and 4 P's of marketing. दिस आर द क्वेश्चन जिसमें इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है एंड 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कैन कम फॉर शॉर्ट नोट. इस तरह से टोटल शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मिला के ओवरऑल पूरे बुक में से पूरे सिलेबस में से आपको 34 क्वेश्चंस जहाँ पे शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों कवर किए गए हैं. इतना आपको कंपल्सरी पढ़ना. एंड यस स्टूडेंट्स, आप ऐसा पूछते हो कि हम पास हो जाएंगे इतना पढ़ के,
तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, बट आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा, आपको वीडियोस को देखना होगा, कोई भी डाउट है वो पूछना होगा। जब तक स्टूडेंट्स लर्न नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक एफर्ट्स टू लर्न एटलीस्ट दिस मच विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टिल इफ एनी डाउट प्लीज टू मेंशन इन कमेंट बॉक्स so you can clear all your queries or doubts. Thank you students for supporting me, and also please do like, share and subscribe to my channel and इसी तरह प्यार and support देते रहिए. Keep watching, stay tuned. Thank you.